I can hear you now. Can you Oh, hear me? yeah, I can hear you. Oh, so it's finally there. Tell me. Yes, finally, we are here. Welcome. Um, I think there was a technical problem. So, anyways, finally, we are Yeah. here, guys. Sorry Yes, for the sometimes it happens. inconvenience, but finally, we are here. So, welcome, first of all. Thank you. Yeah, this is my first one. So, namaskaram, everybody, for taking out time and listening to us. And there was some technical glitch. I don't know what was wrong. We were just following the process. Instead, it did not go through. I don't know why. But now it's through. I hope I'm pretty audible now. Yes, everything is good. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप से पूछूंगा कि अगर आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो कि where you belong to and what do you do? Well, I belong to Vadodara city in Gujarat, and I'm basically a fashion designer. Uh-huh. And based here, and I'm in this industry for like 20 years almost. Mhm. And I'm a certified yoga teacher, certified pranic healer, certified Reiki second degree holder. So I'm a lawyer as well, but I don't practice law. My father was a very reputed lawyer and a politician. Okay. So I did law after studying designing. Mhm. So yep, that's about me. That's good. And Yeah. you happen to do many things, and then you chose to visit a gurdwara sometime in June 2024. Am I right? Yeah. June 2024. Yes. Yes. So how did you end up there? Well, I had been to the pious Gurudwara, Hari Mandir, way back, ages back, when I was Gujarat's basketball team's captain. We had our nationals in Jalandhar. Uh-huh. So we were taken there by the coach and the team. So I had a very nice, pious time then. And so I wake up in the morning around 4:35 o'clock and go to my Shiva temple and do my rituals there. Uh-huh. So while driving from my place to temple, I used to listen to Ek Omkar, which is my favorite mantra. Uh-huh. So I don't know, I used to listen to it every day. And I have a lot of Sardar friends, and we are all pretty cool and nice. So the government of India, the Ministry of Ayush was giving me an award on 19th or 20th June, I don't remember now, in Delhi. So I thought if I'm going, I might as well go to Golden Temple because I hadn't been to that place for a very long time. मैं Right. बहुत सारी जगह पे जाती हूँ। तो मैं गुरुद्वारा बहुत जाती थी पहले से ही, लाइक कोई भी ट्रिप्स हो तभी भी गई हूँ। सो या तो बस ऐसे ही आदेश था, योगा डे था। दिलजीत दोसांझ जी को देखा था मैंने बहुत टाइम पहले, वो प्रमोट कर रहे थे योगा सब कुछ। Right. तो मुझे लगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 21st को, मैं उधर ही थी। आई थिंक मैं 20th को पहुंच गई थी, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। अब मुझे थोड़ा बिज़नेस शॉपिंग करना था बिकॉज़ मैंने है ना एक कलेक्शन लॉन्च किया था थोड़े साल पहले। मैं चंडीगढ़ गई थी तब, मैंने फुलकारीज़ खरीदी थी, फुलकारी दुपट्टे आते हैं इनके हैंडवर्क वाले जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो फुलकारी दुपट्टे और हमारा ट्रेडिशनल गुजरात का जो मिरर वर्क होता है उसको फ्यूज़ करके बहुत अच्छे चनिया-चोलीज़ बनाए थे जो बहुत हिट थे। तो मैं सोचा था कि वहाँ पे जाके कुछ नया मिल जाए मार्केट्स में, तो मैंने काफ़ी शॉपिंग भी करी थी, बिज़नेस शॉपिंग अमृतसर में। वहाँ से Uh-huh. काफ़ी कुछ लेके आई थी और मेरे कलेक्शन में फुलकारी का दुपट्टे आपको बहुत मिल जाएँगे। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा फ्यूजन करना, जस्ट Right. टू फ्यूज कल्चर बिकॉज़ आई एम अ वेरी सेक्युलर अदरवाइज़, मेरे को ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं तो ऐसे ही अपना रिस्पेक्ट देने गई थी बिकॉज़ मैं बहुत मानती थी। Uh-huh. और सरप्राइज़िंगली आप बिलीव नहीं करोगे, यूजुअली जब मैं फ्लाइट में बैठती हूँ, कभी भी मेरे साथ कोई सरदार जी नहीं थे। पर इस फ्लाइट में जब मैं फ्लाई कर रही थी बड़ौदा से, तो Uh-huh. मेरे बाजू में एक सरदार जी थे। तो Right. उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बोला, आप ये करना, आप लंगर में खाना, आप ये सेवा करना। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया भी था।
और जब ये इश्यू हुआ था तब उन्होंने तो मुझे फ़ोन भी किया था कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप सही एक नहीं हो रहा है। I'll stop you here. So आपने जो ट्रिप प्लान की थी, वो हुँ। एक्सक्लूसिवली चंडीगढ़ के लिए की थी, आपका एक वहाँ पे काम नहीं, था? नहीं, नहीं, दिल्ली, दिल्ली। मैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए था प्लान था। ओके, हाँ, दिल्ली टू गेट द अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मुझे दे रहा था राइट, फॉर माय कंट्रीब्यूशन इन इन्फ्लुएंसिंग योगा। राइट, बिकॉज़ पीपल हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मी बिकॉज़ मैं शीर्षासन बहुत करती थी। मैंने हुँ, बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी किया है। राइट, तो यहाँ पे योगा फेस्टिवल होता है परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में जो मैं हर साल जाती हूँ। हुँ, तो वहाँ पे भी मैंने गंगा के घाट में शिव जी के स्टैच्यू के सामने किया है। वहाँ पे तो सब करते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत कॉमन है। तो मुझे नहीं लगा था कि ये करने से इतना कुछ गलत हो जाएगा। मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार ऐसा हो गया। एक्सपेक्टेशंस नहीं थे ऐसे। तो मैं गई थी दिल्ली टू कलेक्ट द अवार्ड, तो मैंने ये ट्रिप मर्ज कर दी, ऐसा था। राइट। तो जब आपने ये ट्रिप स्टार्ट की दिल्ली ऑनवर्ड्स, तो आपने हुँ, ये सोचा कि मैं आई गो टू दैट गुरुद्वारा एंड पे माय हुँ। रिस्पेक्ट्स एंड येस, आई टेक हिज़ आशीर्वाद, येस, जी, टेक द आशीर्वाद, टेक द ब्लेसिंग्स सो तो दैट द आपका सिर्फ अवार्ड जो ये मुझे इंटेंशन था आपका, और 100% जी, और कुछ भी नहीं था। और कुछ नहीं, भी नहीं नहीं। था क्योंकि इसको इस तरीके से बाद में पेश किया गया था कि शी वाज सेंट बाय समवन ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, 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 तो नहीं, नहीं। दैट्स व्हाई दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। और फिर नो, नो। हाँ। हाँ, तो उसके बाद आपने वहां पे आप पहुंचे 20 को जून को। शायद 20th को या तब मैं 2 बार गई हूँ हरि मंदिर, 2-3 बार गई बिकॉज़ मैं नज़दीक ही रही थी, राइट, क्योंकि मैं उनके लिए ही गई थी। और मेरे पास एक पॉलिटिशियन का प्रोटोकॉल था, तो अच्छा, मैं प्रोटोकॉल दर्शन से ही अंदर गई हाँ, उसी ने तो सारे मेरे फ़ोटोज़, वीडियोज़ निकाले थे। एक सरदार जी थे, बहुत अच्छे थे, नेक थे। जब मैं दर्शन तो किया था, मैंने उनको पूछा आपको भी था अंदर एक पंजाब के कोई पॉलिटिशियन ने आपको एक तरीके से वहां पे इनवाइट करके होस्ट किया वीआईपी था। प्रोटोकॉल। नहीं, इनवाइट नहीं किया था। अच्छा, सो यहाँ वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो जानते थे, उन्होंने मेरे को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया था, जो लाइन में ज़्यादा खड़ा रहने नहीं रहना पड़ता, बीच ओके, में से लेके जाते हैं ऐसा। ओके, तो मेरा वो था, तो वो बंदा पूरा अंदर तक, जब तक दर्शन किए, मैं अंदर बैठी सब, मैंने उनको पूछा था कि मैं अंदर बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट कर सकती हूँ? हम्म, तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाके बैठिए, कोई बात नहीं, ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं अंदर बैठी थी काफ़ी टाइम, मैं वहाँ पे रही थी, टॉप फ्लोर तक गई, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, दिखाया, प्रॉपर सब दिखाया। ओके, उन्होंने ही सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए मेरे। जो पिंक आउटफिट में था, वो हम्म। उन्होंने लिया था, जो मैंने लंगर सेवा करी थी, जो भी मैंने सॉरी जो सेवा करी थी, तो उन्होंने दिस वाज फ़ोटोज़ वन वीडियोज़ डे उन्होंने तो बिफोर द मुझे योगा डे। येस, इट वाज़ 20th, उस 20th, दिन मैं जब गई ओके, थी तब का है ये। राइट, हाँ, हुँ। राइट। सो उस दिन आपने वहां पे अपने अपना मेडिटेट किया, नो प्रॉब्लम। नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, वो पंजाबी सूट पहन के जिस दिन गई थी ना मैं, वो जिस जी, दिन 20th था, राइट, तब प्रोटोकॉल दर्शन थे। राइट, और जिस दिन जो मैंने मेडिटेशन किया था, वो जो भी आसन किया था, वो 21st को सुबह अर्ली मॉर्निंग गई थी मैं। हम्म। येस, ऐसा था। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट दिन 21st को योगा डे के दिन गए। हाँ, मैंने सोचा अच्छा दिन है, हम्म। इतना सब आई मीन प्रमोट सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी कर देती हूँ, तो आप मैंने अगर ऐसा ये सोच के आए थे कि योगा डे को जाना है, कि जस्ट कि एक दिन नेक्स्ट दिन था तो आप रुक गए कि चलो कल भी होके आ जाते हैं? नहीं, वो ऐसे ही वो बन गया ना, क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं कोइंसिडेंस मिल बन गया रहा। एक। कोइंसिडेंस बन गया, जी, हाँ, ऐसा। जी, ऐसा जी। कोई इंटेंशन नहीं था कि ये सब करूँगी और ये सब होगा। नहीं, नहीं, नहीं। बिकॉज़ हाउ इट वाज़ प्रोजेक्टेड इज़ कि आपने कोई गहरी प्लानिंग की एग्ज़ैक्टली। होगी या कुछ नो, बहुत वही तो। सोची-समझी चीज़ की होगी। दैट्स व्हाई आई वांट टू 1 दिन आस्क यू पहले तो दिस मैंने वे। टिकट बुक करी। जी। नहीं, 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 नहीं। और आप देखोगे पहले तो मैंने विश किया है कि आप हुँ, हुँ। सबको योगा डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। आई होप हुँ, आप हुँ। सब लोग योगा को इम्बाइब करें। मैं यहाँ से इतना और मेरा जो फ़ोटो था उसमें तो मैंने पूरा लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच आपने मुझे ये अवार्ड दिलाया। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। हुँ, हुँ।
बस मैंने वो लिखा म्यूज़िक सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे शौक इसी बात का लगा है कि मैंने लिखा कुछ गलत नहीं, किया कुछ गलत नहीं, फिर भी इतना वहाँ पे सारे लोग थे। इनफैक्ट जो फ़ोटो खींचा था ना, वो एक सरदार 2 सरदार जी आए थे, उनके साथ उनकी फ्रेंड्स भी थी। वो सारे चंडीगढ़ से आए थे, राइट। वो बाजू में ही थे, वो भी फ़ोटो खींच रहे थे। हाँ। तो उनको मैंने बोला कि आप खींच दोगे? बोले हाँ, कर देते हैं। तो उन्होंने तो सारे और सारी संगत थी, बाजू में सब लोग देख ही रहे थे। किसी ने बोला नहीं मुझे कि मत खींचो या ये गलत कर रहे हो। अगर बोल देते तो मैं नहीं करती, मैं तो चुपचाप डिलीट वो काफ़ी लोग को रोक मैंने देखा वो रोकते हैं जो होते हैं ना वहाँ के सिक्योरिटी वो रोकते हैं सबको कि भई राइट। मत खींचो, हाँ। ये अलाउड नहीं है। हाँ। तो बोलते तो मैं नहीं करती क्योंकि और मैं बहुत दूर थी ना एकदम बाहर के साइड पे थी, मैं अंदर तो नहीं थी। मंदिर के मीन्स जो मेन अंदर का मंदिर है उससे काफ़ी बाहर की साइड पे जो चौखट चौखट नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो पूरा बनाया है, मैं वहाँ पे थी। और सामने प्रसाद का काउंटर था, आप देख सकते हो क्लियर दिखता है, मैं जहाँ से मैंने जो आसन हाँ, तो नहीं पता था वरना नहीं करती, मैं क्यों किसी को ऐसे तो यानी कि हर्ट करना बेसिकली जब चाहूँगी? आपने ये फोटोज वहां पे आप थे, तब तो ये कुछ हुआ नहीं, पर सारी प्रॉब्लम हुई जब आपने वो फोटोज अपने इंस्टाग्राम पे जब डाली और लोगों स्टोरी पे डाली थी। जी, जी। सिर्फ़ स्टोरी पे डाला था, वो स्टोरी शायद 16 घंटे से भी कम रही थी, वो भी मेरे भाई ने इंडिगो की फ्लाइट थी जो मैंने ली थी, तो दिल्ली में हमारा हॉल्ट था। हुँ। इंडिगो ने हमको डिले थी तो उसने हमको स्टे दिया था, तो सुबह मेरे भाई ने मुझे बोला कि कनाडा में ऐसा कुछ हो रहा है, तूने कुछ डाला है? तो मैंने स्टोरी डाली थी, मैंने ग्रिड पे तो डाला ही नहीं था। अच्छा। आई हैव नॉट पुट इट ऑन माय इंस्टाग्राम फीड, इट वाज़ ऑन द स्टोरी। हुँ, हुँ। वो स्टोरी कैसे इतनी हो गई मुझे समझ नहीं आया, हुँ, पर हुँ। मेरे साथ प्लेन में है ना वहाँ की एक लोकल एमएलए थी, एमएलए या एमपी मुझे नहीं पता, एक लेडी थी जिसका फ़ोटो मैंने बाद में डाला था, हुँ, तुरंत हुँ। इस स्टोरी के बाद। और वो आप की नेता थी, वो जा रही थी केजरीवाल जी को मिलने। ओके। तो मेरे साथ फ्लाइट में उनसे बातें हुई, उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे, मेरे साथ साथ में थी, बस में भी साथ में थी। उन्होंने बोला कि मिलना मुझे, आई सेड ओके। मैंने बोला सही बात है, आपको मिलके अच्छा लगा एक्सेट्रा। अब मुझे नहीं पता है कि वहाँ से ट्रिगर हुआ है कि कहाँ से ट्रिगर हुआ है, पर उस स्टोरी के बाद इनके साथ मेरा फ़ोटो था स्टोरी पे। हुँ, हुँ। उनका नाम मैं भूल गई हूँ अब तो, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, अच्छा, तो ऐसा है। तो आपने उनको टैग करके फ़ोटो डाली थी? उनकी और मेरी फ़ोटो डाली थी मैंने टैग करके, येस। अच्छा, तो दैट मे बी द रीज़न शायद से व्हाट मैं अगर सोच सकता हूँ, तो हो सकता है कि हो उनके सकता है, उनके मैंने फॉलोवर्स ने हुँ। देखी हो और उसको फिर वायरल कर दिया हो सकता है। पता हो सकता है बिकॉज़ मैंने भी बाद में सोचा क्योंकि उनको मैंने फ़ोन किया था बाद में, हुँ। उन्होंने उनका पर्सनल नंबर मुझे दिया था। राइट। मुझे अभी याद नहीं है उनका नाम बट आई शुड हैव रिमेंबर्ड इट पर मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन उनके साथ फिर मेरी कभी बात नहीं हुई। हुँ। वो जा ही रहे थे केजरीवाल जी को मिलने और वो आपके ही शी वाज़ एमपी एमएलए ऐसा कुछ था उनका, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, वो मेरे बाजू में बैठे थे प्लेन में, तो ऐसा था। अच्छा, तो जब ये या आप नेक्स्ट दिन उठे और ये आपको पता चला कि कुछ हुआ है इसके बारे में, राइट? हाँ, तो कुछ मैंने डिलीट कर दिया ऑन द अच्छा। स्पॉट। मैंने कुछ ज़्यादा देखा नहीं, मैंने तो फिर जब बरोडा आई, स्टोर पे आई, तो मेरी असिस्टेंट लोगों ने बोला कि मैम स्टोर का फ़ोन बज रहा है सुबह से, नॉन स्टॉप बज रहा है, इतनी सारे आपके लिए गालियाँ आ रही है, ये आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने अच्छा, बोला ओके और मेरा स्टोर का फ़ोन था, पूरा नॉन स्टॉप बजा बिकॉज़ वो फ़ोन नंबर पब्लिक है, ओके। तो उसपे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो नॉन-स्टॉप बज रहा था लाइक कोई जात का लिमिट नहीं है, इतना सारा बज रहा था। वो आई थिंक 10-15 दिन तो चला था लंबा। अच्छा, तो ये उन लोगों ने यानी बेसिकली आपका नंबर जो बिज़नेस नंबर था वो आउट कर दिया हाँ, और उसपे इन लोगों ने हाँ, शेयर करा गया। छ हाँ, चालू कर दिया। हुँ। ओके। तो रैंडम नंबर्स थे, बहुत सारे थे, इंडिया के नंबर्स भी बहुत सारे थे। मुझे बाद में ऐसा न्यूज़ मिला था कि स्लीपिंग सेल्स होते हैं ना, जो वो लोग उसके थ्रू भी नम फ़ोन कर सकते पता नहीं, मैसेजेस भी बहुत सारे थे। तो सारे हमने कलेक्ट करके रखे थे। मैं जब स्टोर आई तो मेरी असिस्टेंट ने बोला कि मैम ये सब आ रहा है। आई सेड तो ओके। उसमें क्या मेरा पर्सनल नंबर क्या तो लिखा उनको हुआ था? वो अभी गड़े-मुर्दे उखाड़ के क्या करना है, छोड़ दो नहीं बात यानी कि खत्म है। ऑफ कोर्स बट कि अच्छी चीज़ें लिखी थी, बुरी चीज़ें, धमकियाँ बहुत गंदी थी ना, मुझे ओके। उड़ा देंगे, मार देंगे, एसिड अटैक कर देंगे, रेप कर देंगे, सब था। क्या बाकी रखा था? कुछ नहीं रखा था। सब अभी भी है, सब सबमिट किया हुआ है ना, मैंने भी एफआईआर करी थी तो और उसमें सारा सबमिट करना पड़ता है ना, कि एंड कहाँ से वर क्या वर करना इट है। इज़ इट एनीथिंग व्हिच इज़
ऐसा कह सकते हैं कि एक लड़की को जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ उन लोगों ने बोला हो? ऑब्वियसली, आई मीन कौन-सा धर्म ये सिखाता है कि भई तुम किसी को इतना बदनाम करो, उतना गाली-गलौज करो, उसको इंसल्ट करो, इतना ट्रोल को इतनी हेट्रेड दो। प्यार से बोल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। आई मीन मेरे को जैसे पता चला कि किसी को हो मैंने तुरंत ही अपोलॉजी कर दी थी, पर उसके बाद तो पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी ना। अच्छा। तो पंजाब पुलिस हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, "अब यहाँ पे आओ, मत्था टेको।" देखो ये सारी बातें पुलिस के थ्रू आई है। हाँ। ओके। और जो पॉलिटिशियन के थ्रू मैं गई थी दर्शन करने ना, उसका जो बंदा था जिसने फोटो खींचा होगा, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा में सब दिख जाता है ना, हुँ। तो उसने उसको पकड़ा, उसने यहाँ पे बोला मुझे कि भाई आप आके यहाँ पे माफी मांगो, पर मेरे घर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि नहीं जाना है, या क्योंकि मुझे पता होता ना कि ऐसी सिचुएशन में मैं जाती नहीं। ये मेरी पता नहीं था कि इतना सिचुएशन वहाँ पे ऐसा है। बाद में सारी न्यूज़ मिली तो मुझे बहुत शॉक लगा। मैंने तो बोला आपने यार ये क्या हो जब गया? लेट्स 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 गो बैक, अभी हम वहीं पे रहते हैं अभी थोड़ी देर। तो नेक्स्ट दिन आपको आप जब आपके स्टोर पे पहुंचे तो आपको पता चला कि बहुत सारे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, गलत गलत चीजें बहुत ज़्यादा। गलत गलत चीजें लोग हुँ, लिख के भेज रहे हैं। हुँ। उसके बाद फिर आपने अपोलॉजी दी, एम आई राइट? हाँ, यस, यस। मैंने ओके। दोपहर का कर दी थी अपोलॉजी। ओके। तो हुँ। जब आपने अपोलॉजी दी तो आपको लगा कि दिस दिस शुड सेटल एवरीथिंग। बिकॉज़ पब्लिकली जो था वो तो मैंने तुरंत ही डिलीट कर दिया था। हम्म। मेरे ग्रिड पे नहीं था, स्टोरी पे था। लेकिन ये भी रूमर्स फैलाई गई थी कि उसने ग्रिड पे डाला था। नहीं, मेरी स्टोरी पे थे इंस्टाग्राम पे। आई थिंक वो 24 घंटे भी खत्म नहीं हुए थे। आई थिंक 12-14 घंटे, मुझे याद भी नहीं कितना घंटा, पर इतना सारा घंटा वो रहा नहीं था। इतने शॉर्ट टाइम में इतना वायरल कैसे गया मुझे समझ नहीं आया। हम्म। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने अगर ग्रिड पे हो तो मैं मान सकती हूँ कि हैशटैग्स है, म्यूज़िक डाला है, तो वायरल हुआ है। ये स्टोरी से वायरल हुआ है। और क्या आपने कुछ सो डेरोगेटरी या कुछ गलत ऐसा कुछ लिखा भी था? नहीं, कहाँ नो, नहीं, कुछ भी डेरोगेटरी नहीं लिखा था, बोला नहीं, कंडक्ट नहीं, कुछ भी नहीं किया है मैंने। नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। कैसे हो सकता है यार? आई रियली रिस्पेक्ट दैट तो रिलिजन, पर और व्हाट कि दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप गए वहां पे, आपने एक योगा हुँ, पोज में फोटो अपनी खिंचवाई और हुँ, आपने वो बस हुँ। पोस्ट कर दी विदाउट सेइंग अ वर्ड, एंड दैट प्रोवोक्ड पीपल। हाँ, बिकॉज़ आई थिंक वो उनको आसना से प्रॉब्लम था। मैंने शीर्षासना किया था, तो उनको उससे प्रॉब्लम था हम्म। कि आप हमारे यहाँ पे ऐसा उल्टा करके नम नहीं कर सकते हो, रिस्पेक्ट्स पे नहीं कर सकते हो, वो गलत है। राइट। ऐसा उनका कहना है कि आप नॉर्मली आके करते तो हम कुछ नहीं बोलते, पर आपने शीर्षासन किया है वो गलत है। आप यहाँ पे योगासन नहीं कर सकते, योगा की जगह नहीं है। जहाँ पे योगा करना है वहाँ कर दीजिए। बिल्कुल। पर मैंने 5 सेकंड के लिए ही किया था, जस्ट टू पे माय रिस्पेक्ट्स। मैं वहाँ पे कोई आधा 1 घंटा बैठ के योगा नहीं कर रही थी। राइट। तो जब आपके वर्क पे ये बताया कि ये सब मैसेजेस आ रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन हुआ एट दैट पॉइंट? मैं बहुत शॉक थी, लाइक अनदर लेवल पे शॉक। मेरी मॉम बहुत शॉक थी, मेरा पूरा फैमिली बहुत शॉक था कि ये क्या है? आई मीन और जो मेरी योगा कम्युनिटी वाले हैं जितने भी हैं, वो सब भी बहुत शॉक्ड थे एंड दे टोल्ड मी टू फाइल अ पिटिशन, ये वो। ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को नहीं करने का है। और अगर मुझे सच में वो जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं ना कि मुझे बहुत मैसिव फेम चाहिए था, मुझे पॉजिटिव वे में चाहिए था, नेगेटिव वे में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। अगर मुझे करना होता तब मीडिया वाले मेरे आगे पीछे इतने घूम रहे थे, कितने फ़ोन कॉल्स आए मीडिया वालों के, मेरे स्टोर के बाहर, मेरे घर के बाहर कितनी मीडिया वाली थी, मैं कहीं पे भी नहीं गई। मुझे कोई चांस किसी को भी ये चीज़ को मैनिपुलेट या मिसकोट मुझे कर दे वैसा चाहिए ही नहीं था। तो यू यू वरना यू मुझे करना था, मैं किस यू डिसाइडेड कि आपने एक अपॉलजी पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड देन यू चोज हुँ। कि मैं अभी कुछ मुझे गलत ना कोट कर दे, दैट्स व्हाई आई कीप साइलेंस। या और फिर मैंने ईमेल किया है, जैसे मुझे जी। पुलिस वालों का वहाँ से फ़ोन आता था, उन्होंने मुझे जब नोटिसेस भेजी, तो मैंने उनको रिप्लाई किया है नोटिस को। मैंने उनको ईमेल, पोस्ट, हैंड रिटन जो लेटर्स होता, आई मीन जो सॉरी, लिख के जो भेजना था, उनका जो टेम्पल है वहाँ पे भेजा है, उनके जो मेन हेड होते रिलीजियस गुरु, उनको भेजा था। ओके। उनके साथ सो मुझे उन्होंने बोला ये सब मैंने, हाँ, कितने फ़ोन यू लगाए, तो गेव बोलते हैं वो भी वर्बल अपॉलजी ऑन वीडियो, आपने उसके बाद
एसजीपीसी को और उन रिटर्न अपॉलॉजी। हाँ, हाँ, जत्थेदार को हाँ, आपने रिटर्न अपॉलॉजी हाँ। भी दी, हाँ, और कमिश्नर जी को भी दी, पुलिस पुलिस कमिश्नर को कमिश्नर। ईमेल किया है, उन्होंने बोला जी, मिल गया है, सब कुछ हो गया है। मेरे को यहाँ से पुलिस से भी इन्फॉर्मेशन थी कि आई कैन नॉट गो टू दैट प्लेस, जी, मेरे लिए प्रोहिबिटेड था। और मैंने इनको ऐसा भी बोला कि अगर आपको चाहिए कि मैं वो सज़ा कर दूँ, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे भी गुरुद्वारे हैं बरोड़ा में, मैं यहाँ पे जाके वो मैं कर दूँगी जो पनिशमेंट है पूरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वहाँ पे नहीं आ सकती। मैंने बोला सब जगह भगवान तो है ही, गुरुजी यहाँ पे भी है, वहाँ जी। पे भी है, तो बोले नहीं आपको अमृतसर ही आना पड़ेगा। मैंने ये भी बोला कि मैं यहाँ पे करने को तैयार हूँ, जो भी पनिशमेंट है, जो भी सेवा करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको उधर ही आना ये पड़ेगा। किसने मना किया आपको? और इससे पुलिस ने मना किया कि एसजीपीसी ने मना किया? मुझे याद नहीं है, पुरानी बात है, पर मुझे इतना पता है कि बहुत सारे पंजाब पुलिस में से मुझे फ़ोन आए थे। अब सच में वो पंजाब पुलिस वाले ही थे या फिर कोई दूसरे इंसान थे, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो ऐसा बोलते थे मैं पंजाब पुलिस में ये थाने से बोल रहा हूँ, तो जी, मैडम जी मुझे ये निपटाना है, तो आप ऐसा करो, वैसा करो, आप इनको फ़ोन करो, आप जत्थेदार से माफ़ी माँग लीजिए, वही दे सकते हैं आपको माफ़ी, और कोई नहीं दे सकता। तो उनको मैंने बहुत जी, बार फ़ोन भी किया था। तो वो हमेशा कहीं न कहीं थे, वो लंदन ट्रिप थे, फिर कभी मिले नहीं मुझे फ़ोन पे, फिर मैंने छोड़ दिया। ये सब मैंने अपनी तरफ से सारा कर दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। जी। अग तो और आपको उनको अब जब ये धमकियाँ मिली तो ऑब्वियसली आपको डर लगा। व्हाट वाज़ योर नेक्स्ट स्टेप कि आप इंश्योर करें कि आप फिज़िकली आप और आपकी फैमिली सेफ रहे सेफ और रहे। आपका बिज़नेस आप व्हाट डिड यू डू फॉर दैट? So I just went to the police station, but before I went to the police हुँ। station, the police was already there at my place. क्योंकि सो दिस मेरे इज़ घर के गुजरात पुलिस। यस गुजरात पुलिस, आई मीन ओके, हैट्स ऑफ टू देम, उनको न्यूज़ मिल गया एंड दे जस्ट केम टू माय हाउस कि मैम आप घर पे रहो, हम मैं क्राइम ब्रांच से आया हूँ, तो दे डिड व्हाट दे हैड टू डू। फिर मैं गई थी कंप्लेंट लिखवाने, उसके पहले वो आ चुकी थी, गुजरात पुलिस ऑलरेडी देयर एट माय प्लेस राइट। एंड तो ग्रेटफुल टू देम दैट दे डिड every possible thing to keep me safe and I'm really grateful। जिसने भी कैसे भी कहाँ से आए मुझे नहीं पता, उनको पता चल गया न्यूज़, मुझे नहीं पता किसने बोला उनको आने के लिए। बट मैंने उनको पूछा तो बोले पूरे हाँ, इतना चल रहा है तो फिर हम लोग आ गए आपकी सिक्योरिटी के लिए। फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी थी, एफआईआर किया था, लेकिन एफआईआर मैंने जिन ये सब रैंडम लोगों के अगेंस्ट किया था, नॉट अगेंस्ट एसजीपीसी, बिकॉज़ उन्होंने तो नहीं राइट। किया है ना, वो तो रैंडम हुँ। लोगों ने आके किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ मेरे अगेंस्ट एफआईआर करी है। जी। या तो फिर गुजरात पुलिस ने आपको क्या कहा कि कुछ एश्योरेंस दिया, सिक्योरिटी दी, क्या They दिया? gave me a security. They gave me a gunman who was with me for like अच्छा, 6 months or something. And ओके। yep, they provided me with security, and that's it. तो उन्होंने बेसिकली मुझे ये हम कह सकते हैं कि गुजरात पुलिस के इंटेलिजेंस को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी कि दिस इज़ हाँ अ खुद ही सीरियस आए थ्रेट। हैं। हाँ सीरियस थ्रेट, हाँ, वो खुद ही आए थे, मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं हुँ। किया था तब तक। तो या तब तक ये मैं बात अभी आई ज़रूर वाज ट्राइंग बिकॉज़ आई थिंक हुँ, फ्राइडे को मैं सैटरडे को बड़ौदा पहुंची, मैं स्टोर आई, जी, फिर ये सब मैंने अपोलॉजी किया, और संडे को बड़ौदा मैं घर ही थी, मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, बिकॉज एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी अर्शना ये क्या हो गया, यू गो टू द पुलिस कंप्लेन, बिकॉज आई नो द प्रेस पीपल ना, जर्नलिस्ट यहाँ पे मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से, सो दे जी, ऑल्सो कॉल्ड मी अप कि अर्चना यू शुड गो टू द पुलिस, फाइल अ कंप्लेन, दिस इज वेरी सीरियस, ऐसा वैसा। तो मैं कंप्लेन करने जाऊँ उससे पहले ये लोग आ चुके थे मेरे घर पे। जी, संडे को आई थिंक सुबह-सुबह ये लोग पहुँच चुके थे मेरे घर। जी। तो क्राइम ब्रांच आपको से लोग आए थे, क्राइम ब्रांच हाँ, या जी। तो उसका मतलब ये है कि डेफिनिटली दे असेस द सिचुएशन एज़ वेरी सीरियस कि या हमको इट वाज़। प्रोएक्टिवली इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एंड दे गिव यू सिक्योरिटी। तो इसका तो साफ मतलब ये है कि मेनी पीपल वर मोटिवेटेड टू हार्म यू। हाँ, पता नहीं बिकॉज़ देखो ये सीरियस इश्यू था, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको आई डिड नॉट गो ऑन द मीडिया एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ आई न्यू कि दिस वाज़ नॉट अ जोक एंड स्टफ लाइक दैट। जी। तो फिर उस दिन ये 1-2 दिन होते रहा, उसके बाद फिर फ़ोन कॉल्स आते रहे बहुत दिनों तक। हाँ, बहुत दिन चले।
अच्छा, और सेम वही धमकाना, गलत लिखना, बैड लैंग्वेज यूज करना। बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी। और वो सब रैंडम नंबर्स से आ रहे थे, स्लीपिंग नंबर्स, यस, यानी ऑफ कोर्स फेक नंबर्स होंगे, गलत नंबर होंगे बहुत जिसमें कोई सारे नंबर रिप्लाई। से आ रहे थे। जी। तो यस। जी। उसके बाद हाउ हाउ थिंग्स स्टार्टेड कमिंग डाउन, उसके बाद क्या हुआ? आ उसके बाद कामिंग क्योंकि डाउन एज इन आपकी, आई डोंट। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ये इम्पैक्ट हुआ होगा, योर लाइफ वुड हैव गॉट डिस्टरप्टेड इन मेनी वेज। ओ आपको फर्स्ट, या वेरी आपको बैडली बिकॉज हाँ। आपको बहुत तरीके से, अम, एक तो एक इमोशनल शॉक लगता है, एक हम्म। डर भी लगेगा आपको, और ऊपर से कि you have never been in this sort of situation earlier. यस, नेवर एवर। So नहीं, how सो do I navigate through this? ये भी तो एक डर होता है। जी। सी मैं डरी नहीं थी फर्स्ट, जी। because my faith in my Mahadev is beyond the fear. First, जी। second कि गुजरात पुलिस का सपोर्ट था मुझे, और लोगों का सपोर्ट जी। था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन, जितने भी लोग हैं जहाँ भी थे जिन्होंने मेरे बारे में सपोर्ट किया, मेरा साइड लिया। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इतनी पढ़ी लिखी है, इतना कुछ जानती है, इतना है, वो वहां जाके क्यों करने गई। लॉट ऑफ पीपल हैड, हमारे खुद के रिलीजन वाले सब बोल रहे थे, पर अभी मेरे माइंड में ऐसा नेगेटिव तो कुछ था नहीं। अब जी। हो गया। सो लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स वे वेरी स्केर्ड, तो मेरे स्टोर पे काफी लोग, कोई नहीं आया। सो इट अफेक्टेड माई बिजनेस इन अ बिग वे। पीपल थॉट कि अभी इसको कभी भी लेके जाएंगे तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो काफी लोग ने अपने हम्म। ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे, एडवांसेस वापस लिए हैं। तो my business हम्म। was hit. Of course, my reputation was hit. Because once something like this happens, there's जी। always going to be two side. सिर्फ ऐसा बोलना कि हम तुम्हारे साथ है, उससे क्या होता है? जी, एक्चुअल बिल्कुल। लाइफ में एक्शन मैटर्स ना। राइट। तो सो जैसे दैट इज आपने इट कहा हैपेंड। कि लोकली ये बात स्प्रेड हुई, तो क्या जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स या छोटे चैनल्स या हाँ सोशल हाँ, मीडिया सबने। होते हैं, उन्होंने हम्म। कवर किया ये सब आपके नाम और हाँ फोटो के हाँ साथ? हाँ हाँ, एवरीथिंग वाज कवर्ड, इट वाज कवर्ड एवरीवेयर, पूरा गुजरात। जी। जी। इट वाज एवरीवेयर। बट जो जर्नलिस्ट है, जो मुझे जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोग, सो दे न्यू मी पर्सनली, सो दे आस्क मी माई साइड ऑफ स्टोरी के क्या हुआ, एंड दे नो कि ऐसा नहीं है, ऐसा मलाइस नहीं, बिकॉज मैंने हम्म। बहुत सारी जगह पे शीर्षासन किया है। मैंने तो खाट डुंगला पे बर्फ पे भी किया है, जहाँ पे लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, और मैंने वहां जी। जाके भी किया है। तो उनको तो जी। पता है कि अर्चना करती रहती है, मैं डेजर्ट में कर चुकी हूँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं कर चुकी हूँ। तो जी। मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, और मेरी फैमिली के लिए बहुत सारा शॉकिंग था, इवन फॉर द योगा कम्युनिटी। जो योगा कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड की, जो मुझे जानते हैं, बिकॉज मैं योगा फेस्टिवल में जाती हूँ, परमात्म निकेतन में ऋषिकेश में हर साल जाती हूँ, वहां पे भी लोग मुझे जानते हैं। वो लोग भी बहुत शॉक्ड हो गए कि ऐसा है, बिकॉज हम जो बैकग्राउंड से आते हैं, जो मेरा एक्सपोजर है, उस हिसाब से तो दिस नथिंग रॉन्ग, बट हाँ, सबका अलग अलग नजरिया है। हम नहीं बोल सकते किसको क्या कब, परसेप्शन सबका अपना खुद होता है, वो अपने बिलीफ सिस्टम से फॉर्म होता है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। पर इतना पता चल गया, इट वॉज अ लर्निंग लेसन फॉर मी, कि भाई यू नो हैव टू बी कॉशियस, कि भाई दूसरे धर्म की जगह पे नहीं जाना चाहिए। इतना तो मुझे पता चल चुका है, बिकॉज जी। मैं कभी अलग नहीं समझती थी सरदारों को या फिर किसी को, ये होने जी। के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम नहीं करते भेद, बट सब काफी, वो लोग कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। यू नेवर नो। जी। तो ऐसा जब है। आप ये कहते हो, तो आई मीन जैसे हम, वी सॉ इट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइडर्स हम्म। पर्सपेक्टिव, हम्म। और मैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो यही इश्यूज को वी आर कवरिंग फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ, यही सब अच्छा। चीजें होती है। तो अच्छा। व्हेन वी सॉ दिस, अगर आप मेरे अकाउंट को देखोगे, देयर आर फ्यू अदर अकाउंट्स कि ओके। अ, पंजाब के अंदर और बाहर जो हिंदू माइनॉरिटीज होते हैं, हम्म। उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया जाता है। आज ही एक वो, वीडियो आया है हाँ जहां पे मैंने वही। एक लेडी है, वो अपनी डॉटर के साथ गई हुई है और उसको थप्पड़ मारा है, मारा है हाँ मैंने एक। देखा। हाँ। हाँ। तो वो भी जो भी नीले कलर का पहनते हैं, हाँ। वो वालों ने उनको थप्पड़ मारा है, एक फीमेल को। हम्म।
अब मैंने ये देखा अगर वो तो इतना जी, खराब था, वो तो इट्स टू एट्रोशियस, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं है, ऐसा जी, नहीं कर सकते हो। आई मीन जी, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सिचुएशन खराब है, बिकॉज़ मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। समझो, जी, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं जी, यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं ये सब न्यूज़ नहीं देखती, मैं हेटेड नहीं देखती हूँ। दैट इज़ जी, मी। मैं अपनी लाइफ जी, में फ़ोकस हूँ, मैं अपने बिज़नेस में फ़ोकस हूँ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फ़ोकस हूँ। मुझे नहीं पता था इतना बुरा, मैं जाती ही नहीं। एक हिंट भी होती ना मुझे, जी। पर मुझे दुःख इस बात का है कि बिकॉज़ ऑफ दिस नाउ आई कांट विज़िट दैट साइड ऑफ इंडिया एवर, बिकॉज़ इट्स तो मुझे वो एक दुःख है, पर अभी क्या ही करेंगे? नहीं ऐसा नॉट देखो जिसको कहते हैं कि टायरेंट इज नेवर परमानेंटली इन पावर, तो यू नेवर नो, थिंग्स में चेंज वेरी क्विकली। क्या पता एसजीपीसी में मैनेजमेंट चेंज हो, पंजाब में गवर्नमेंट चेंज हो, तो थिंग्स में चेंज प्रीटी सून। बी होपफुल। हाँ। अरे! मुझे ये बात याद आई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सो जो जी, पंजाब पुलिस है ना, तब मुझे बोल रही थी कि आप इधर नहीं आ सकते तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाओ, आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ जाओ, हम आपका बयान वहाँ ले लेंगे। हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं यार, मेरे घर से तो अलाउड नहीं है, मुझे गुजरात पुलिस ने भी मना किया है कि आई कांट लीव गुजरात एट द मोमेंट। जी, तो येस, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, बराबर है आपकी बात, पर आई डोंट नो हम्म, हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक। नहीं बिल्कुल सही बात है। अब ये बात सोचो कि आप तो एक कॉमन सिटीजन हो, और हुँ, इन लोगों ने अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा, उसको भी अभी 5 दिन हाँ। पहले बुला के नीचे जमीन पे बिठा के एक तरीके से बेइज्जत किया। हाँ, तो सुना मैंने ऐसा कुछ। जी, जी, जी। तो यू बीइंग कॉमन सिटीजन, ये लोग सोचते हैं कि दे हैव गॉट द फाइनल पावर। जैसे कि हुँ, एक थियोक्रेटिक यानी कि मजहबी देश होता है, जैसे तालिबान रूल करता है अफगानिस्तान हुँ, में, हुँ, जो हुँ, वो सजा देंगे वो लॉ के कानून के भी ऊपर है, ये लोग समझते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, इसीलिए हुँ, तो जो कमजोर होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, कोई निहत्था होता है, खासकर हिंदू, उसको ये लोग हुँ। बेरहमी से पीटते हैं। हाँ, वो देखा और मैंने, मार तो नहीं सकते, ये गलत है, उनको मारना तो नहीं चाहिए, वो लेडी को मेरी तो मारा है पूरी खींच के थप्पड़, दिस इज़ मेरी वेरी तो रॉन्ग। पूरी लड़ाई ये इसी पर है कि हु गिव्स देम द राइट टू हिट एनीबॉडी। वही कॉन्स्टिट्यूशन वो में कौन सा प्रावधान है कि कुछ भी कोई करे, इनके पास हाथ में पावर कैसे है किसी को रोड पे चलते कहीं पे भी हो मारने की, चाहे उसने कुछ भी किया हो। अगर हुँ, आपके सामने मर्डर भी हो रहा है, यू कैंट टच अ पर्सन लाइक दैट, यू गॉट नो नो अथॉरिटी, राइट्स। हुँ, नो राइट्स टू डू दैट। तो ये हुँ, किस हुँ, हुँ, राइट से लोगों को पीट रहे हैं, लोगों को बेरहमी से झुंड के झुंड में जाके मार रहे हैं, और हुँ। हर एक सरकारें चुप है इस पे। वही तो मुझे शॉकिंग लग रहा है। मुझे तो ये शॉक लग रहा है कि ये धर्म में, इनके ही धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इनको नहीं मानते हैं। उनको पता है गलत हो रहा है, पर वो लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जी, और आधे से लोग ये जो गलत काम कर रहे हैं ना, उनको अपने धर्म का रूट्स ही नहीं पता है। वो तो सिर्फ़ ब्रेन वॉश्ड है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, बिकॉज़ इनका धर्म बहुत सुंदर, पवित्र है और बहुत जी, सेवादायी है और बहुत अच्छा, बिकॉज़ मैं इंटरनेशनली जहाँ पे भी गई हूँ, मैंने हर जगह गुरुद्वारा गई हूँ, वहाँ पे ऐसा वाइब भी नहीं है। यू नो तो ये कोई 1% होगा इनके वहाँ पे, जिन्होंने ये सब क्रिएट किया है फॉर ओन देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट और व्हाटएवर। लेकिन जो जी, बाकी के हैं, वो क्यों देख रहे हैं और क्यों कुछ इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे, जुड़ के क्यों नहीं बोल रहे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, बल्कि उनको पता ही है, पर वो बहुत डरते हैं, बहुत हुँ। डरते हैं। तो नाउ मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि आपने हम्म। कहा ये सब हो रहा था, तो आपने बोला कि बेटर है कि मैं ये बात को ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट दे के बिगाड़ ना दूँ, तो यू चोज़ कि चुप रहो। तो या आपने बिकॉज, हाँ, बिकॉज आपने मेरे को एक कुछ मिनट, वहां पे लेट मी उस टाइम। फिनिश माय क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन रख हम्म। देता हूँ। हम्म। तो आपने बोला कि मैं कुछ अभी इस पे चुप रहूं तो बेटर है, बट आपने अभी 1.5 साल के बाद चूज किया कि मैं इस पे बोलूंगी। हाउ यू थॉट दैट यू शुड स्पीक नाउ एंड व्हाई? So, my friends, I'm not on Twitter. I'm not active on Twitter. I was not on जी, Twitter even then.
मुझे जी। नहीं पता वहाँ पे कितनी गंदगी मेरे अगेंस्ट हुई थी। मुझे थोड़ा-सा मेरी असिस्टेंट बोलती मैम आपके बारे में ऐसा सब है, ये सब है। मैंने देखा भी नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है बिकॉज़ मुझे पता है कि मैंने जी। ये सोचा कि मेरे सारे खराब कर्म कट रहे हैं बिकॉज़ हमारे धर्म में ऐसा बोलते हैं कि जब तुमको बहुत लोग गालियाँ दें ना तो बहुत खुश हो जाना चाहिए बिकॉज़ तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। तो वो हुँ। पॉज़िटिव माइंडसेट थी तो मैं कभी गई नहीं ट्विटर पर सिर्फ़ देखने, समझ रहे हो? मैं नहीं थी उधर। मैंने कुछ हुँ। बोला ही नहीं, मैं मेरे को आता ही नहीं यूज़ करना ट्विटर। सिर्फ़ थी मैं लाइक आई एम देयर बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट नाउ आई स्टार्टेड यूजिंग इट। लिटरली या सो बिकॉज़ अगर आपको आता तो आज ही हम लोगों ने इतनी स्ट्रगल की फर्स्ट टू गेट गेट यू नहीं ऑन पर मैंने टॉप। किया बट देयर सम जी। टेक्निकल ग्लिच वो मेरी गलती नहीं थी यार। सो जी। एनीवे माय फ्रेंड टोल्ड मी एंड फ्यू ऑफ देम स्टार्टेड सेंडिंग मी रील्स कि अर्चना तेरे बारे में बातें हो रही है। दे स्टार्टेड सेंडिंग मी रील्स जो सब हुआ है। देन आई सॉ इट देन आई रियलाइज्ड कि इतना बायस ओपनली कर रहे हैं लोग मेरे को डिस्कस कर रहे हैं लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं तो आई थिंक आई कैन एटलीस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस यू नो एंड आपने तो मेरे को इतना अच्छा एक आपका मैंने एक आपका जो कोट आपने मेरे लिए लिखा था वो मेरे को सच में टच कर गया बिकॉज वो सब नहीं देख सकते अगर आप वो देख सकते हो मेरे में तो जी। आप में वो लेवल का स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि आपको ये एक्ट समझ में आता है। बाकी नॉर्मल इंसान को मेरा ये एक्ट समझ में आया ऐसी मुझे आशा भी नहीं है। धन्यवाद आपका तो बहुत-बहुत थैंक आपने यू वो आपको। पढ़ा। तो मुझे किसी ने भेजा वो तो मैंने पढ़ा और आपसे जब मैंने देखा कि आप हो तो आपसे जब मेरी बात हुई इस बात पे, तो जी। मैंने सोचा कि इफ आई वांट टू गो लाइव एंड टॉक अबाउट दिस, इट हैज़ टू बी समवन आई ट्रस्ट बिकॉज़ जी। मीडिया तो मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर देंगे और फिर जी। कोई चीज़ का हंगामा बना देंगे, पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। तो मुझे आई वांटेड अ जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म और फिर हमारी बात हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच अर्चना जी एंड फॉर योर थैंक यू ट्रस्ट। थैंक यू सो नो मच। वरीज़ कोई बात नहीं। मैं तो बिल्कुल मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव रहता है कि वी शुड टेल द स्टोरी व्हिच द मेनस्ट्रीम मीडिया वोंट से और इसीलिए ये प्लेटफ़ॉर्म है कि व्हाट मेनस्ट्रीम मीडिया इज़ नॉट गोना टू शो वो हम यहाँ पे दिखाएँगे क्योंकि दे आर चेसिंग रेवेन्यूज़, दे आर यस, चेसिंग एग्ज़ैक्टली। मनी। यस। हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हमें अच्छा, दिखाना है कि भाई अ, देखो बात तो यही है कि माय पॉइंट इज़ कि व्हाई दे सिंगल आउट ओनली द हिंदूज़ टू डू ऑल दिस ब्रावाडो। अभी हुँ, रिसेंटली जिस पे मैंने भी आपको बताया था कि हुँ, एक मुस्लिम वहाँ पे जाता है एंड यू हुँ, डोंट नीड टू स्पीक अबाउट दिस आई मीन आई एम जस्ट हुँ, गिविंग माय हुँ, ओपिनियन हुँ, हुँ, कि हुँ, एक मुस्लिम वहाँ पे जाता है, वो तौहीद का सिग्नल देता है, सिंबल बनाता है। वहाँ हुँ, पे थूकता है वो उनके होली सरोवर में हुँ, और अपने हाथ धोता है, पैर धोता है, इस्लामिक प्रैक्टिस की तरह हुँ, और उसके बारे में जब पूछा जाता है तो बोलते नहीं, नहीं शायद से उसको पता नहीं था। तो चलो कोई हुँ, बात नहीं, चलो उसने तो अब माफ़ी माँग ली, खत्म हो गई बात। हुँ, 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 बट हुँ, कोई अनजाने में एक कोई गरीब होगा बेचारा भूखा होगा शायद से चला गया हो गलती से हुँ, तो अगर चलो वो खाता भी होगा तंबाकू उसके जेब में रह गई होगी हुँ, और उसको जेब चेक करके उसको जो बेरहमी से जो 5 फुट 4 इंच का है पतला दुबला सा गरीब हुँ, जिसको खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा इतना कमजोर हुँ। उसको ये हट्टे कट्टे 15-20 लोग मार रहे हैं इतनी वो बेरहमी से गलत है, बहुत गलत है। उनका धर्म ये सिखाता भी नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से कैसे हो रहा हाउ है। हाउ पीपल कैन स्लीप एट नाइट डूइंग दिस मुझे तो समझ तो नहीं आता मुझे और भी नहीं आता। उससे ज्यादा बेशर्म वो लोग हैं कि जिनके पास थोड़ा सा भी वॉइस है वो उसके अगेंस्ट बोलते नहीं है ये जुल्म को देख रहे हैं हर रोज और इसको बस हंस हंस के इधर उधर रफा दफा कर रहे हैं सबकी मुझे लग रहा है कि अंतरात्मा मर चुकी है मुझे तो लग रहा है नहीं, कि लोग पता है आप क्या सोचते हैं कि मैं बताती हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना, पता है क्या सोचते हैं लोग? कि भाई हम्म, उसका उसका बवाल है, हमें क्या करना है? हमें क्यों इंटरफेयर करना है? हमको नहीं पड़ना इसी चीज़ों में। तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि भई क्यों खाली-खाली लफड़ा मुँह पे ले और सच बताऊँ ना, तो मैंने देखा है कि
जो ग्रुप है जिन्होंने मुझे इतना तंग किया था, तो मेरे सरदार फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि अर्चना जो अब्रॉड कंट्री में है, जिनको मैं मिली थी इसके बाद, वो मुझे मिले तो सही, पर मुझे बोला कि अर्चना प्लीज़ किसी को बताना नहीं कि हम तेरे को मिले हैं या कुछ, बिकॉज़ फिर हमारे पीछे पड़ जाएँगे। वो सरदार जो मेरे साथ फ्लाइट में था, जो मेरे को सब बताया कि आप ये करो, वो करो, रिटर्न के फ्लाइट में, आई मीन बाद में जब ये सब हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे को आपको हेल्प करना है, पर मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएँगे। तो उसने वो स्टेटमेंट भी नहीं दिया, वरना वो अपना मुँह हाइड करके मेरे लिए स्टेटमेंट देना चाहते थे कि वो ऐसी लड़की नहीं है। पर फिर वो भी बैक आउट हो गए, बोले कि नहीं यार, वो मेरे पीछे पड़ जाएँगे, ढूँढ लेंगे मुझे कहीं से। तो पीपल आर जी वेरी स्कैर्ड ऑफ देम, तो दे थिंक कि क्यों खाली-खाली लफड़े मोड़ना, हमारी ज़िंदगी चल रही है, शांति से चलने दो। तो अभी क्या ही कर सकते हैं बताइए? जी, नहीं हम बस अवेयरनेस ही कर सकते हैं कि लोगों को बताया जाए कि मैं तो हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा आप लोगों को एक सिख गुरुद्वारे में जाके क्या मिलता है कि जो हमारे हिंदू टेम्पल में नहीं मिल सकता? एंड दैट हैज बीन ऑलवेज माय क्वेश्चन कि व्हाट वो बात स्पेशल तो यू कैन गेट देयर कि आप वहां पे जाते हो जो आपको एक हमारे हिंदू टेम्पल में नहीं, यानी कि बेसिकली आपका फेथ वीक है, तभी आप दूसरी जगह नहीं, ऐसा जाके नहीं है, ऐसा लोगों नहीं है। को, मैं तो हुँ, बाकी कॉमन लोगों को बोल रहा हूँ, बट हुँ, देखो जो गरीब है हुँ, वो, मैं अग्री करता हूँ कि भूखे मारे जाते होंगे, हुँ, मैं हुँ, अग्री हुँ, हुँ, करता हूँ, हुँ, और उनको ये सब जो मार पिटाई करते हैं वो गरीबों के साथ करते हैं, बट वही गुरुद्वारे में जो टॉप डोनर्स होते हैं, जो अमीर बिजनेसमैन हिंदू होते हाँ, हैं, वो 10 करोड़, 8 करोड़, हुँ, 9 करोड़ का जो डोनेशन देते हुँ, हैं, ये हुँ, लोग उनके सामने लेट के उनको वाह वाह आओ साहब आओ करते हैं, उनके साथ नहीं हुँ। करते ये लोग बदतमीजी। ये तो राइट? हर जगह का सेम ही है। व्हाई आर यू ओनली सेइंग अबाउट दिस? कहाँ नहीं है ऐसा नहीं नहीं बताओ? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर आपको मैं बात बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब जगह नहीं बोलते कि हम सबसे अलग हैं, मानस की जात एक नहीं बोलते कि हम सबको, पैसे वाले को और गरीब को एक साथ बिठा के खिलाते हैं, तो आप भी तो सेम चीज कर रहे हो ना, आप अलग कैसे हुँ। हो गए फिर? हाँ, वो हिपोक्रेसी तो नहीं आप होनी अगर चाहिए बट आप अगर हमारे लोगों को ये बोल रहे हो कि आप पाखंड कर रहे हो, ये तो यू आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम। हाउ कम यू आर नॉट, आप जो गरीब गरीब है उसकी पिटाई कर रहे हो, और जो आपको करोड़ों का डोनेशन दे रहा है उसको आओ साहब कर रहे हो, तो बहुत फर्क हुँ, है ना। इसमें अगर आप बोलते हो कि आप भी तो यही कर रहे हो, तो यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम, यू आर नो डिफरेंट, यू गॉट हुँ, नो स्पेशल स्टेटस। तो ये तो यही तो हम बात को लाना चाहते हैं बाहर की, जो कॉमन लोग हैं वो ये बात समझे कि आपको हुँ, वहां पे जाके कोई स्पेशल चीज नहीं मिलेगी, कि जो आपको, एक आप हिंदू मंदिर में जाओगे, आपको अगर आस्था है तो आप वहीं पे जाओ, आपको मान हुँ। मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको कोई मारेगा नहीं, आप जाओ वहां हाँ, पे। पर हमारे में ऐसे किसी को मारते नहीं है ऐसे। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ कि नहीं आप मारते हैं जाओ, कभी। प्यार से एक बार और बोल मैं, देते हैं, उसके बाद हाँ, कुछ मारते तो कोई नहीं, ऐसा तो मैंने कभी उसको देखा नहीं, ज्यादा स्वयं से इतना ज्यादा घूमी। उसको ज्यादा से ज्यादा हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे, बस, हुँ, उससे ज्यादा तो क्या ही करते हैं। नहीं मारते तो नहीं, ऐसे तो कभी नहीं मारते। बिल्कुल। तो ये बात, और वो भी एक इंटिमिडेटिंग आदमी जिसने हाथ में तलवार ले रखी है, जिसके हाथ में चाकू है, वैसा आदमी आके ग्रुप में एक अकेले को 8-10 घेर लेते हैं, हाँ, और वो बस वो जैसे एक रोड में किसी गुंडे गुंडे घेरते हैं, ये लोग बिल्कुल हुँ, वैसे ही घेरते हैं। तो हमारी तो लड़ाई वही है और रहेगी कि जब तक आप सम्मान पूर्वक इन लोगों को नहीं ट्रीट करोगे, तब तक तो हम कहेंगे कि मत जाओ, जब तक आप हमारे धर्म और देश के लिए गलत काम करोगे तब तक हुँ, तो हम करेंगे। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू टॉपिक, अब जब ये अ, मुस्लिम ने ये किया, तो हुँ, उसकी कंपैरिजन आपके साथ होने लग गई कि दो अलग अलग बिहेवियर्स हुए हैं, दो हुँ, अलग अलग हुँ, लोगों के हुँ, साथ। हुँ। तो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस? आई वाज़ शॉक्ड अगेन।
आई वाज लाइक ये क्या हो गया भाई, इसने तो ओपनली चैलेंज किया, सब किया, मैंने तो कुछ इसमें से 0.1% भी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली वहां पे अपना सब कुछ किया था। तो आई डोंट डिजर्व दिस फॉर श्योर। और उन्हें जो मेरे को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जो बिजनेस वाइज जो उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं, हार्म किया है, हैरेस किया है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट मैंने अभी, मेरे को किसी ने रील भेजी थी कि दिसंबर 2025 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें वो पंजाब पुलिस को ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अर्चना को चालान क्यों नहीं भेजा है। तो दे आर स्टिल ऑन इट। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है, दे आर स्टिल ऑन इट, क्योंकि एफआईआर तो अभी भी चालू है। तो अच्छा। जो उन्होंने किया है वो गलत है, सबके लिए इक्वल पनिशमेंट होनी चाहिए ना। चलो मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, किया नहीं, इसने तो ओपनली सब किया है, फिर भी उसको उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो कोई बोल रहा था कि उसने सॉरी बोल के वो वहाँ पे आने के लिए रेडी था, सॉरी गुरुद्वारा आके माफी मांगने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर मेरे को ये थ्रेट व्रेट नहीं मिली होती, अगर गुजरात पुलिस मुझे जाने देती तो मैं जाती। मैं तो जी। बोल रही हूँ लोकल गुरुद्वारा में जाने के लिए मैं तभी भी तैयार थी कि भाई मैं अपनी जो भी पनिशमेंट है कर दूंगी। अगर आपको इतना लगता है कि मेरे से बहुत ज्यादा कुछ बहुत ही खराब हो गया है तो मैं कर देती हूँ, मुझे कोई मनाही थी नहीं। पर उनका तो ऐसा ही है कि वहां आके माफी मांगो, वहां आके माफी मांगो। मेरी जान की कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गुजरात पुलिस के नॉट कम देयर नो विद मी, दे के नॉट कम। तो फिर मैं कैसे जी। जाऊं? और उन पे तो मुझे पंजाब पुलिस पे तो 1% भरोसा मुझे तो नहीं है भाई, उनका जी। तो भूल जाओ, तो एक तरीके से इम्पॉसिबल। कहा जाए कि आप तो अपने ही देश में काफी स्टेट्स में अब एक तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते अपनी सेफ्टी को लेके। तभी भी मुझे जब ट्रैवल करना था तो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी पुलिस जी, ये क्या बोलते हैं जो पुलिस जनरल को मुझे लिख के परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। तो मुझे तभी जी। तो आई डिडंट वांट दिस टू लास्ट लॉन्ग बिकॉज माय प्राइवेसी, माय फ्रीडम वर एट स्टेक, एवरीथिंग वाज गॉन। सो जी। आई लव माय फ्रीडम एंड माय प्राइवेसी। तो जी। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि खाली-खाली चीज़ को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि लोग बोले थे उसने फेम के लिए किया। मैंने किया फेम के लिए, पर ऐसे फेम के लिए नहीं किया था मैंने। यू नो आई डिड इट फॉर अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल, कि भाई लोग इंस्पायर हो, जैसे यहाँ पे लोग इंस्पायर हुए हैं जो अभी जिम नहीं जाते, योगा क्लासेस जाते हैं, शीर्षासन अटेम्प्ट करते हैं, फोटोज डालते हैं कि भाई हमको भी शीर्षासन करना है, सीखना है। तो वो माइंडसेट से गई थी मैं। ये तो क्या ही बोलूं, अब मैं क्या बोलूं, कुछ बाकी रहा है बोलने का। जी। ऊपर से जी। मेरे को रैंडमली कहाँ कहाँ से लीगल नोटिसेस आने लग गई। कोई सीख लीगल एड से मुझे आया, फिर मुझे कोई रैंडम जी ने किया, सब ने मुझे नोटिस भेजी। मैं यूट्यूब पे हूँ भी नहीं तो बोलते हैं आपने यूट्यूब पे ये बोला, ऐसे मैं हूँ ही नहीं तो मैं कैसे बोलूंगी। जी। फिर कोई एक रैंडम इंसान है दिल्ली में, हरदीप कुछ नाम है, मुझे तो अभी याद नहीं, वो ईमेल किए जा रहा है, उसने कोई आरटीआई फाइल किया है, पता नहीं क्या क्या किया है, उस वो पंजाब पुलिस को बोल रहा है कि आपने, सो समबडी वाज पोकिंग फ्रॉम समवन देयर। फिर किसी ने केस कर दिया और मेरा नाम यूज किया, और वहां पे मेरे मेरे नाम से कोई लॉयर भी है, और मुझे वो केस क्या है पता ही नहीं है, सोचो। और वो बंदा मुझे ईमेल कर रहा है कि आपके नाम से केस हुआ है। मैंने थोड़ी केस किया है, मैं कैसे केस कर सकती हूँ, मैं उधर हुई नहीं, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने करने दो इनको जो करना है, मुझे नहीं इसमें पढ़ना है। पर तो ये सब बहुत गलत हो चुका है, विच जी। आई डोंट थिंक आई डिजर्व्ड इट, क्योंकि इन इलीगल नोटिस को मैंने रिप्लाई नहीं किया था, तो उसके बाद उन्होंने कोई स्टेप लिया नहीं है। जी। तो अब तो उनको सिर्फ फेम चाहिए था शायद। अब मैंने ये सब मेंशन भी नहीं जब किया उनका, उनको मेंशन भी नहीं दिया था मैंने कहीं पे। जी। जी। उनको ऐसा जी। कि शायद मैं सब पोस्ट कर थी, ये भी पोस्ट करूं, मैं क्यों पोस्ट करूं, मैंने नहीं किया। ओके। तो अगर ये कहा जाए कि अब चलो लेट्स समराइज दिस कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम देयर साइड? आई वुड एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम देम, कि भाई हमसे जो जी। हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दे शुड क्लोज माय एफआईआर एंड वी शुड जस्ट क्लोज दिस चैप्टर एंड एंड देन आई विल, या दैट्स इट, एंड द स्टोरी। मैं तो बहुत फॉरगिविंग इंसान हूँ भाई, मैं जो पढ़ी हूँ उसमें तो यही सिखाते हैं सबको माफ कर दो, मैं नहीं रखती कोई ग्रजेस किसी के भी अगेंस्ट। तो मुझे तो किसी के अगेंस्ट नहीं, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैं अब गुरुद्वारा नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वहां पे मुझे कोई पहचान लेगा तो मेरे हित में होगा, उसकी थिंकिंग क्या है मेरे मेरे लिए।
जी, तो दैट इज़ अ बिग लॉस दैट आई हैव, बट आई हैव टू गो विथ इट। आई कांट डू एनीथिंग। वो रेक्टिफाई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं कहीं भी गुरुद्वारा में जाऊँगी, मुझे पता नहीं है वो बंदा मेरे बारे में पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है, तो वो फ़ियर से मुझे नहीं जाना। जी। बट इट्स ओके, आई हैव माय ओन मंदिर्स, मैं वहीं जाऊँगी। ठीक है अभी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? मेरा तो देखो यही कहना है कि आई ऑलवेज एनकरेज कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता ही है कि आपका सम्मान नहीं होने वाला, यू आर लुक डाउन अपॉन एज अ इंफीरियर क्रिएचर। मैं तो ऐसी जगह पे ऐसा नहीं है मैं कभी गया नहीं हूँ, आई हैव गॉन अंटिल कि मुझे समझ नहीं थी ये सब चीज़ों की एट अ वेरी यंग एज। तो उसके बाद तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गया हूँ। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि दे लुक डाउन अपॉन पीपल। जब ये लोग कहते हैं कि हम एक रब में विश्वास करने वाले हैं, हुँ, तो दे इनडायरेक्टली आर पॉइंटिंग एट हिंदूज कि भाई आप तो मल्टीपल गॉड्स में विश्वास करते हो, तो यू आर समहाउ हुँ। इंफीरियर। तो ये सब ओह! चीजें जब ये इम्प्लाई इनडायरेक्टली और डायरेक्टली करते हैं और सिर्फ सिंगल आउट करते हैं पुअरर हिंदूज को, तो हुँ, हमारा तो कोई ऐसी जगह पे फेथ तो दूर की बात है कि जिनसे मैं तो सोशल भी वो नहीं कर सकता कि जो आपको इंफीरियर क्रिएचर मानता हो। राइट, आप तो आपका फेथ अलग हो सकता है बट एवरीवन इज ह्यूमंस। जो आपको इट्स ह्यूमन ट्रू। ही नहीं मान रहा आपके फेथ की वजह से, तो ऐसे लोगों के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकता। जब वो पर पता है। ज, जी, नहीं आप बोलिए जब। जब ये लोग बोलेंगे कि भाई एवरीवन हैज गॉट देयर ओन वेज ऑफ प्रैक्टिस एंड हुँ, एवरी फेथ इज इक्वल एंड एवरीवन हैज देयर ओन मीन्स, तब कुछ बात हुँ, हो सकती है, तब तक नहीं हो सकती। बिकॉज एग्जैक्टली दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इस्लाम डस। और ये दीज हुँ, गाइस आर नॉट एनी डिफरेंट, उनमें कोई अब फर्क नहीं हुँ, बचा है। बट बहुत लोगों को यहाँ पे लगेगा कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत सारे सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हुँ। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो आयरॉनिकल है काफी। बट वो मुझे मैं बता प्राइवेटली, रही हूँ ना। हाँ, जी जी, मैं बता रही हूँ ना कि आप सही बोल रहे हो, मेरे भी बहुत सारे सरदार फ्रेंड्स हैं। वो हाँ डरते हैं ना, वो बोलते हैं कि अर्चना एग्जैक्टली, हम वो क्या मुझे करें? प्राइवेटली उनको अप्रोच पता करते है, हैं। हाँ, प्राइवेटली ही बात करते हैं, हाँ, कि भाई हमको पता है पर हाँ अब क्या करें? मुझे लगता बिल्कुल, है इन सबको मिलके जो एसजीपीसी का उनका जो मेन है ना, उनमें सही लोग जिनको उनके धर्म का पूरा रूट्स पता हो, असली चीज़ें पता हो, वो वहाँ पे आ जाएँगे तो सब ठीक ही हो जाएगा। फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी उनको डिसाइड करना है, उनका धर्म है, उनको जैसे जाना है। बिकॉज़ अगर उनके हेड में ही इतनी गड़बड़ होगी, तो फिर लीडर्स में ही गड़बड़ है, तो फिर आगे का तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि भई यू नो आप जो बोल रहे हो। जी। तो वही मैं तो लोगों को बताता हूँ और कहता हूँ कि भाई रिस्पेक्टफुली उन दे गॉट ऑल द राइट्स टू फॉलो व्हाट दे बिलीव इन। हम तो उन्हें कभी नहीं बोलते कि मत करो हुँ, इसमें बिलीव, बट फिर हुँ, हम भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारे फेथ में फिर आप भी इंटरफेयर मत करो। फिर सही है। आपके ही सिंगर्स गाने बनाते हैं कि अ, हमने जब शिवलिंग पे दूध डाला उसके ऊपर गाने बनाते हो, फिर हम भी फिर पोस्ट कर हाँ, देंगे कि अरे फिर वो हम बहुत खराब, वो कितना मुझे मेरे को मैसेजेस में आए हैं, कितना गंदा बोला है उसने ये सब, कि तुम लोग जी, व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड पे करते हो। मेरे तो फिर मेम्स भी हमने भी बने थे। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल, तो फिर हमने भी वीडियो डाल हुँ, दी कि आप भी तो जो गुरुद्वारा का फ्लोर है वो मिल्क से धोते हो, तो फिर उसके बारे में भी फिर हम बोलेंगे, राइट? अगर नहीं आप उनके जैसा कौन बोलोगे, बने? नहीं, हुँ, फिर तो बोलना पड़ेगा ना यार। अगर आप बोल रहे हो कि हमने शिवलिंग पे दूध डाल के गलत किया है कुछ, हमारे पैसों का दूध हम आपसे तो नहीं माँग रहे, तो हुँ, हुँ। देन समवन हैज़ टू आंसर देम इन द सेम लैंग्वेज। बट दैट्स और व्हाट आई एम वही मैं सेइंग ना, मैं हुँ, वही बोल रही हूँ, उनको उनके धर्म के बारे में पता ही नहीं कहाँ से आया है, उनको रूट्स ही नहीं पता। जिस दिन बिल्कुल, सबको पता चल जाएगा कि उनका रूट्स क्या है, गुरबानी में असलियत क्या लिखी है। मुझे तो मेरे सरदार मेरे जो सिख फ्रेंड्स उन्होंने मुझे भेजा था कि गुरबानी में ये सब लिखा है अर्चना, ये तू बोल देना। अब बताओ,
वो खुलेआम नहीं आ सकते सपोर्ट में, पर मुझे उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और इसकी वजह से मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन आ गई इनके धर्म की, जो मुझे कभी ज़िंदगी में पता नहीं थी और पता चलने वाली भी नहीं थी। पर अब आ गई ना इन्फॉर्मेशन। मुझे कितना जी कुछ नहीं पता था, जो सारा मुझे पता चल गया। काश उनमें उनमें ये सब कोई बता दे उनको, उनकी हिस्ट्री कहाँ से, रूट्स, ओरिजिनल सब चीज़ें। क्योंकि ऋषिकेश में जो लोग आते हैं सब गोरे ही हैं, जिन्होंने ये इनका धर्म अपनाया है। तो वो सब बहुत चिल और बहुत ईज़ी है, जो हमारे सेशंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, इसमें इनका यूज़ होता है। एक ओंकारा सत्यनामा हे शिवाय, ये सब चैंटिंग होती है। तो मुझे थोड़ी पता था कि, बिकॉज़ मेरा एक्सपोज़र कंप्लीट डिफरेंट है और इनका जो जो हुआ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कभी किसी का परसेप्शन हो सकता है वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में। खैर अभी ठीक है, अभी सब हो गया है, क्या ही करें। जी बिल्कुल। तो एनीथिंग एल्स व्हिच आई हैव मिस्ड आउट और एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एट द मोमेंट। पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं तो सब भूल चुकी थी ना। ये तो नया वापस इग्नाइट हुआ, तो लोग बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ऐसे लोग के मैं बता सकती हूँ उसमें कुछ गलत तो नहीं है। मैं कहाँ अभी सब इतना है, पर वो लोग ने अभी भी मेरी एफआईआर के पीछे तो पड़े हैं, वो तो मैं बता देती हूँ। मुझे काफी लोगों ने बोला आप क्वाश क्यों नहीं करवा देते। आई सेड जी व्हाई शुड आई ब्लो ऑफ माय हार्ड अर्न मनी फॉर दैट। जी ऑफ इसलिए मैंने कोर्स स्टेप्स नहीं लिए। you did हाँ, nothing क्योंकि wrong and that is going to cost you at least 50,000 to 1 lakh at least for nothing. नो, कपल ऑफ लैक्स, बिकॉज जी पहले तो अमृतसर में जाएगा कौन करने। जी तब तो नोबडी वाज इवन रेडी टू टेक द केस। हम ढूंढ रहे थे कोई बंदा जाके वहां पे वो सब करके आए, क्योंकि हम्म, दिल्ली से करना पड़ेगा ना, तो द लॉयर हैव टू हायर देयर दैट जी प्लेस। जी तो ये तो बिल्कुल आप बहुत कम अमाउंट बोल रहे हो, इतना कम अमाउंट में कोई नहीं करता, 3-4 लाख से तो कुछ नहीं कम होगा। जी। नहीं अब हम तो मैं एक अपील करूंगा आपके बिहाफ पे इधर से कि भाई शी हैज ऑलरेडी सफर्ड लॉट और देयर शुड बी सम, अगर आप ह्यूमैनिटी बोल रहे हो तो देयर शुड बी सम ह्यूमैनिटी शोन एंड शुड बी शोन टू द वर्ल्ड कि भाई आप हो humanly, and then you let it go, right? And that I think people should also put pressure on them कि अब माफी मांग ली रिटर्न में वीडियो पे, कब से it हो should be गया पोस्ट, it should तभी be हो गया done, था सब कुछ। and yeah people should be forgiving, but यार ये लोग इतने विशियस है कि इतने जुनून, इनमें जुनून और रेडिकलाइजेशन आ गया है कि दे हैव क्लोज देयर आईज और ये मुझे सब तो ऐसा भी बोलना उनका बेकार है। सॉरी सॉरी। जी नहीं, गो अहेड गो अहेड। नहीं, सो समबडी टोल्ड मी कि अर्चना भले ही ये शांत हो जाएगा, बट नाउ दे नो यू, और तेरी लाइफ तो फॉरएवर डेंजर में चली गई। क्या जी पता कहीं पे तू घूम रही हो 5-7 साल 10 साल। उन्होंने मुझे इंसिडेंट्स दिए थे कि अर्चना हम तुझे डरा नहीं रहे, पर इनसे थोड़े संभल के ही रहना ऐसा, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। हमारी आपकी डिस्कस हो चुकी थी बात, आपको याद है ना, हमने बोला था। जी 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 तो दी लाइफ तो फॉरएवर इसमें आ गया ना थ्रेट में। और जो भी बंदा, शायद मैं किसी से शादी करने जाऊंगी तो उसकी फैमिली भी सोचेगी ना कि भाई जी इसके पर तो ये है, तो इसके साथ कैसे करेंगे, इसको ला सकते हैं घर में कि नहीं ला सकते। सब थोड़ी इतने ब्रेव होते हैं, सब डरते हैं ना, सब फट्टू होते हैं। क्योंकि मैंने जी देखा था काफी मेरे फ्रेंड्स गायब हो गए, काफी लोग ने डिस्टेंस बना दिया, मेरे दुश्मनों को मजा आ गया कि अच्छा हुआ तेरे साथ, एक्सेट्रा। और मैं सोचती रह गई कि थैंक गॉड ये हुआ, मुझे पता चला कौन मेरा फ्रेंड है, कौन मेरा वेल विशर है और कौन सिर्फ बोल बच्चा नहीं। यू गेट टू सी द कलर्स ऑफ एवरीबॉडी अराउंड यू। सो उन्होंने मेरा नुकसान बहुत ज्यादा किया है, बट अभी क्या ही करे, होगा कुछ। जी on this note, if you want to add anything at the end. बस एवरीबॉडी, आप लोग जिन्होंने भी मेरे लिए आवाज उठाई, मेरे लिए बोले, मेरे लिए खड़े रहे, मेरे लिए प्रेयर्स की, हवन किया, जो भी हो जहाँ पे भी हो, थैंक यू सो मच। मैं बहुत डीपली ग्रेटफुल हूँ। शायद जहाँ हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ, वो आप सबकी दुआओं और आपके सपोर्ट की वजह से हूँ। बस ये बरकरार रखना। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। Thank you very much अर्चना जी आपके आने के लिए, and thank you very much everyone for joining in. Om Namah Shivaya.